This is our second module on accounts receivable management, and this is 151st module of our course of financial management. In this module, we will continue our discussion on accounts receivables management और credit policy. हमने इससे पिछले मॉड्यूल में ये देखा कि क्रेडिट पॉलिसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बिकॉज एवरी बिजनेस हैज़ टू मेक सेल्स and increase sales. And to increase sales, every business, almost every business, is bound to give a certain credit, and that credit is a norm of that business. यानी अगर एक बिजनेस किसी खास मार्केट में ऑपरेट कर रहा है और एक ख़ास किस्म के सेट ऑफ कस्टमर्स के साथ डील कर रहा है और उस मार्केट के अंदर एक सर्टन टाइम पीरियड ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, so that business cannot compete unless that credit is given to the customer. Now, for that, a credit policy in detail has to be prepared, which would require the knowledge of credit worthiness. Also, we talked about it in detail in the last lecture, that whether it is has got a better standing and it has got a lesser rating, and accordingly we see that how much credit can be given. We also talked about cash discount. We also talked about that what is the net credit period and what is the collection period. हम इस क्रेडिट पॉलिसी को मज़ीद डिटेल में समझने के लिए कुछ और टर्म्स को पहले देखेंगे जिनकी एप्लीकेशन हमारी क्रेडिट पॉलिसी के अंदर और उसकी एप्लीकेशन के अंदर आगे चल के आएगी. सो इस मॉड्यूल में हम कुछ इन चीज़ों का जिक्र करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ the cost. Cost is divided into two categories, that is fixed cost or variable cost. Simply speaking, fixed cost वो cost है जो हमारे level of operations के बढ़ने या घटने से तब्दील नहीं होती. Meaning that if our sales go up, fixed cost will not change. If our sales go down, still the fixed cost will not change. So the cost which is independent of the operational level of a business is called fixed cost. For example, fixed rent, for example, fixed salaries. In contrast to that, there is variable cost. Variable cost वो cost है जो हमारे operational level के साथ साथ कम होती है और ज़्यादा होती है. So we say that it is dependent or it is proportional to our level of operations, yani level of production or level of sales. If we increase our sales, our variable cost will go up, and if we decrease our sales, our variable cost will come down. The second thing that we need to remember or understand in this discussion of accounts receivable management is contribution margin. कंट्रीब्यूशन मार्जिन की टर्म यूज़ होती है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस के लिए. यानी अगर हम अपने रेवेन्यू या सेल्स में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें, यानी फिक्स कॉस्ट को छोड़ दें, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें, तो हमारे पास जो अमाउंट आती है या जो प्रॉफिट आता है उसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन का नाम देते हैं. कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट सेलिंग प्राइस में से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट out of the total amount of sales. Then we can also calculate a ratio of this contribution margin. यानी इस contribution margin को अगर हम सेल्स की अमाउंट के साथ डिवाइड कर लें, जैसे मैंने कहा कि हम इसको टोटल अमाउंट के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पर यूनिट अमाउंट के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेशो है. दोनों केसेस में हमारे पास सेम आंसर सेम रिजल्ट आएगा. तो इफ वी डिवाइड आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन विद आवर सेल्स, we get the contribution margin ratio. Now, because contribution margin is the difference of sales and variable cost, so अगर हम
कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को देखें तो ये वेरिएबल कॉस्ट रेशो का बचा हुआ हिस्सा है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकालें विच विल बी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, और ये वेरिएबल कॉस्ट रेशो अगर 70% आ जाए तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 30% होगी। अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशो 90% आ रही होगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 10% होगी। इस तरह हम वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशोज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन रेशोज़ का इस्तेमाल हम आगे चल के अपनी क्रेडिट पॉलिसी की कैलकुलेशन की डिस्कशंस के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत अहम है कि हम इसको अच्छी तरह समझ लें, जहन नशीन कर लें कि ये रेशोज़ क्या हैं और कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। हम आगे चलते हैं। एक और टर्म जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारी इस क्रेडिट पॉलिसी की डिस्कशन के अंदर हमें इस्तेमाल करनी होगी, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी एक जगह से निकाल कर किसी दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, तो जहाँ से हम अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं वहाँ से जो रिटर्न हमें मिल रहा था वो हमें छोड़ना पड़ता है, वो हमें फोरगो करना पड़ता है। तो जितना रिटर्न हम छोड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट another investment somewhere else, that is called opportunity cost. So the return that we have to forego in order to invest our money somewhere else, or we can say that opportunity cost represents the potential benefits an investor misses out on when choosing an alternative over another one. कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। यानी हम अपनी क्रेडिट पॉलिसी की डिस्कशन के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होंगी, जो कैलकुलेशंस होंगी, उनको देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये वो लास्ट चीज़ है कि जिसके ऊपर हम बात करने के बाद अपने अगले मॉड्यूल की तरफ मूव कर जाएंगे, जहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशंस की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट असल में परसेंटेज है, परसेंटेज रिटर्न है, यानी वो परसेंटेज रिटर्न जो कि हमें मिल सकता था किसी और जगह से, लेकिन हमने क्योंकि वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली तो इसलिए वो हमें परसेंटेज रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी कैलकुलेशन के अंदर परसेंटेज की शक्ल में आएगी। हम जब अगले मॉड्यूल के ऊपर पहुँचेंगे तो हम इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपना बेंचमार्क बनाएंगे। हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पर ये बात करते हुए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट असल में हमारा बेनिफिट है, असल में हमारा रिटर्न है, असल में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है और उसकी परसेंटेज है। और कॉस्ट जो है वेरिएबल या फिक्स्ड कॉस्ट असल में वो अमाउंट है जो कि हमारी जेब से एज ए बिजनेस जाएगी। तो कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट we'll be making decisions about the credit policy as we'll discuss in our next module.